کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے نقشے پر موجود ایک وسیع صحرائی خطہ آخر اتنی غیر معمولی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ ایک ایسی سرزمین جہاں دن کے وقت سورج کی تپش ریت کو دہکا دیتی ہے اور رات کو خاموش صحرا ستاروں کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جس نے صدیوں تک قافلوں کی آہٹیں سنی ہیں، عظیم تہذیبوں کو دیکھا ہے اور تاریخ کے ایسے واقعات اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کے اربوں انسانوں کو متاثر کیا۔ ہر سال دنیا کے مختلف ملکوں، زبانوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے کروڑوں لوگ اس سرزمین کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے سفر کا مقصد نہ سیاحت ہوتی ہے اور نہ ہی کاروبار، بلکہ روحانی وابستگی، عبادت اور مقدس مقامات کی زیارت ہوتی ہے۔ لیکن سعودی عرب کی کہانی صرف اتنی نہیں۔ یہ صرف مقدس شہروں کی سرزمین نہیں، بلکہ حیرت انگیز تبدیلیوں، غیر معمولی ترقی اور عالمی اثر و رسوخ کی بھی داستان ہے۔ آخر وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے ایک صحرائی خطے کو دنیا کے اہم ترین ممالک میں شامل کر دیا؟ تیل کی دریافت سے پہلے یہاں کے لوگوں کی زندگی کیسی تھی؟ یہ ملک مختلف علاقوں اور قبائل سے ایک متحد ریاست کیسے بنا؟ اور آج دنیا کی نظریں ایک بار پھر اسی سرزمین پر کیوں مرکوز ہیں، جہاں اربوں ڈالر کے جدید منصوبے مستقبل کی نئی تصویر پیش کر رہے ہیں؟ دوستو، آج کی اس دستاویزی فلم میں ہم سعودی عرب کی تاریخ، ثقافت، معیشت، روحانی اہمیت اور جدید ترقی کے ان پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں گے جنہوں نے اسے دنیا کے منفرد ترین ممالک میں شامل کر دیا ہے۔ تو آئیے وقت کے سفر پر چلتے ہیں اور سعودی عرب کی اس دلچسپ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سعودی عرب مغربی ایشیا میں واقع ایک ایسا ملک ہے جسے دنیا بھر میں اپنی مذہبی اہمیت، وسیع صحراؤں اور معاشی طاقت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا کے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے اور عرب خطے کے اہم ترین ممالک میں اس کا نام نمایاں ہے۔ اس کی جغرافیائی حیثیت بھی نہایت منفرد ہے۔ ایک طرف بحیرہ احمر کے نیلگوں پانی اس کی ساحلی حدود کو چھوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب خلیج فارس اس کے مشرقی کناروں کو عالمی تجارت اور توانائی کے اہم راستوں سے جوڑتی ہے۔ اردن، عراق، کویت، قطر، متحدہ عرب امارات، عمان اور یمن اس کے ہمسایہ ممالک ہیں، جس کی وجہ سے یہ خطہ تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کسی طیارے سے سعودی عرب کے وسیع علاقوں کا نظارہ کیا جائے تو دور دور تک سنہری ریت کے سمندر دکھائی دیتے ہیں۔ بلند ریتلی ٹیلے، کھلے میدان اور بے انتہا وسعت انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ یہی صحرا صدیوں تک عرب قافلوں کے سفر، تجارت اور ثقافتی روابط کا مرکز رہی ہیں۔ یہاں کا موسم بھی اپنی شدت کے لیے مشہور ہے۔ گرمیوں میں بعض علاقوں میں درجہ حرارت انتہائی بلند سطح تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ سورج غروب ہوتے ہی کئی صحرائی علاقے نسبتاً ٹھنڈے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ دن اور رات کے درجہ حرارت میں یہی نمایاں فرق سعودی عرب کے صحرائی ماحول کی ایک منفرد خصوصیت سمجھا جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک خاموش اور خشک سرزمین دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے اندر تاریخ، ثقافت، قدرتی وسائل اور جدید ترقی کی ایسی داستان پوشیدہ ہے جس نے اسے دنیا کے اہم ترین ممالک میں شامل کر دیا ہے۔ دوستو، سعودی عرب کی اہمیت صرف اس کی جغرافیائی حیثیت یا قدرتی وسائل تک محدود نہیں۔ اس سرزمین کو دنیا بھر میں ایک منفرد مقام اس تاریخی پس منظر کی وجہ سے حاصل ہے جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا۔ تقریباً 14 صدیاں قبل اسی خطے میں ایک ایسی شخصیت تشریف لائیں جن کی تعلیمات نے تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، جو اس دور میں تجارتی سرگرمیوں اور قافلوں کے اہم مراکز میں شمار کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں مکہ کے قریب واقع غار حرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہی وہ واقعہ تھا جسے اسلامی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلام کا پیغام آہستہ آہستہ عرب کے مختلف علاقوں اور پھر دنیا کے دیگر خطوں تک پہنچا۔ آج مکہ مکرمہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے غیر معمولی روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں موجود خانہ کعبہ اسلام کا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے مسلمان اپنی نمازوں کے دوران اسی سمت رخ کرتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں افراد مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں۔ مختلف زبانیں، مختلف ثقافتیں اور مختلف قومیتیں رکھنے والے لوگ ایک ہی مقام پر جمع ہوتے ہیں، جو اس شہر کی عالمی اور روحانی اہمیت کو نمایاں کرتا ہے۔ بہت سے زائرین بیان کرتے ہیں کہ جب وہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ان کے لیے اس لمحے کے جذبات کو الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ہر شخص کا تجربہ مختلف ہوتا ہے، لیکن اس مقام کی روحانی اہمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص جگہ رکھتی ہے۔ مکہ مکرمہ صدیوں سے اسلامی دنیا کا ایک اہم روحانی مرکز رہا ہے، جہاں ہر سال لاکھوں افراد عبادت اور زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مختلف زبانوں، ثقافتوں اور ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی مقام پر جمع ہو کر یکجہتی اور عقیدت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ مکہ کے بعد مدینہ منورہ کا ذکر آتا ہے، جو اسلامی تاریخ میں غیر معمولی اہمیت کا حامل شہر ہے۔
हिजरत के बाद ये शहर इब्तिदाई इस्लामी मुआशरे का मरकज बना और यही वो जगह है जहां मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े है। दुनिया भर के मुसलमान इस शहर से गहरी मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। मदीना मुनव्वरा की शनाख्त सिर्फ उसकी तारीखी अहमियत तक महदूद नहीं, बल्कि उसका पुरसुकून माहौल, रूहानी फिजा और तारीखी मकामात भी ज़ायरीन के लिए खास कशिश रखते हैं। बहुत से लोग अपने सफर के तजर्बात में इस शहर के सुकून और मुनफरिद माहौल का जिक्र करते हैं। वक्त के साथ साथ इस्लामी दुनिया की हुदूद वसी होती गई और मुख्तलिफ अदवार में मुताद्दिद रियासतें और सल्तनतें इस खित्ते से वाबस्ता रहीं। बाद की सदियों में जजीरा अरब के कई इलाके सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरी इंतजाम भी रहे, जिसका असर इस खित्ते की सियासी और इंतजामी तारीख पर नुमायां तौर पर देखा जा सकता है। 19वीं सदी के आखिरी बरसों और 20वीं सदी के आगाज में जजीरा अरब सियासी तब्दीलियों के दौर से गुजर रहा था। मुख्तलिफ इलाकों में मकामी क़यादतें उभर रही थीं और खित्ते का सियासी नक्शा तेजी से तब्दील हो रहा था। इसी दौरान नज्द के इलाके से एक ऐसी क़यादत सामने आई जिसने मुख्तलिफ इलाकों को एक मरकजी निज़ाम के तहत लाने की कोशिश की। इस तहरीक की क़यादत अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान आले सऊद ने की, जिन्हें तारीख में इब्ने सऊद के नाम से भी याद किया जाता है। उन्होंने कई बरसों तक मुख्तलिफ इलाकों में अपना असर व रसूख बढ़ाया और बतदरीज एक वसी खित्ते को मुत्तहिद करने में कामयाब हुए। इस सियासी और इंतजामी अमल के नतीजे में 1932 में एक नई रियासत के क़याम का ऐलान किया गया, जिसे आज दुनिया सऊदी अरब के नाम से जानती है। नई रियासत के इब्तिदाई साल तरक्की के एतबार से आसान नहीं थे। मईशत महदूद वसाइल पर इन्हिसार करती थी और ज्यादातर लोग तिजारत, मवेशी बानी, खजूरों की काश्त और मकामी कारोबार से वाबस्ता थे। वसी सहराई इलाकों और महदूद कुदरती वसाइल की वजह से जिंदगी काफी सादा समझी जाती थी। लेकिन फिर तारीख ने एक नया मोड़ लिया। 1938 में सऊदी अरब के मशरिकी इलाकों में तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। इस दरियाफ्त ने न सिर्फ मुल्क की मईशत को नई सिमत दी, बल्कि आने वाली दहाइयों में उसे आलमी तवानाई की सनत का एक अहम मरकज बना दिया। आज सऊदी अरब दुनिया की बड़ी तवानाई पैदा करने वाली मईशतों में शुमार होता है। मुल्क के वसी तेल के ज़खायर और तवानाई के शोबे में इसकी अहमियत ने इसे आलमी सतह पर नुमाया मकाम दिलाया है। कई दहाइयों से तेल की बरामदात सऊदी मईशत का एक बुनियादी सुतून रही हैं, जबकि आलमी तवानाई की मंडियों में होने वाली तब्दीलियों पर भी दुनिया भर की नजरें लगी रहती हैं। तवानाई के शोबे में मजबूत हैसियत की वजह से सऊदी अरब बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी मुबाहिस और इलाकाई ताउन में अहम किरदार अदा करता है। यही वजह है कि आलमी मंडियों, सरमायाकारों और माशी माहिरीन की तवज्जो अक्सर इस मुल्क की पॉलिसियों पर मरकूज रहती है। अगर हम सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज की बात करें तो आज ये शहर जदीद तरक्की की एक नुमाया मिसाल बन चुका है। चंद दहाइयों कबल निस्बतन महदूद आबादी रखने वाला ये शहर अब जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, बुलंद इमारतों, वसी शाहराहों, जदीद ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स और बैनुल अक़वामी कारोबारी मराकिज का घर बन चुका है। रियाज में कायम मालियाती मराकिज, सरकारी मंसूबे और निजी सरमायाकारी इसे मशरिक़ वुस्ता के अहम इक़्तिसादी शहरों में शामिल करते हैं। यही वजह है कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियां और सरमायाकार इस शहर को मुस्तकबिल के अहम कारोबारी मराकिज में शुमार करते हैं। सऊदी अरब का हुकूमती निजाम शाही तर्ज हुकूमत पर मबनी है और आल सऊद खानदान मुल्क की सियासी तारीख में मरकजी हैसियत रखता है। जदीद सऊदी रियासत के क़याम से लेकर आज तक ये खानदान मुल्क की इंतजामिया और पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा करता आ रहा है। आलमी मीडिया में अक्सर सऊदी अरब की माशी तरक्की, बड़े तरक्याती मंसूबों, जदीद शहरों और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के हवाले से खबरें ज़ेरे बहस रहती हैं, जो मुल्क की बढ़ती हुई आलमी अहमियत को जाहिर करती हैं। हालिया बरसों में सऊदी अरब ने अपने मुस्तकबिल के लिए कई बड़े तरक्याती मंसूबों का आगाज किया है। इन तब्दीलियों के मरकज में वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 प्रोग्राम है, जिसका मकसद मईशत को मजीद मुतनव्वे बनाना, नए शोबों में सरमायाकारी को फरोग देना और मुल्क को जदीद तकाज़ों से हमाहंग करना है। इस मंसूबे के तहत सियाहत, टेक्नोलॉजी, सनत और जिद्दत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, ताकि मईशत को सिर्फ तेल पर इन्हिसार से आगे बढ़ाया जा सके। इन्हीं मंसूबों में नियोम सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल करने वाला मंसूबा है। ये एक जदीद शहरी तरक्याती प्रोजेक्ट है जिसे मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है। यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल दोस्त निजामों को अहम मकाम दिया गया है। नियोम के अंदर द लाइन नामी मंसूबा भी शामिल है, जो अपने
मुनफरिद डिजाइन की वजह से दुनिया भर में ज़ेरे बहस रहा है। इस मंसूबे का तसव्वुर एक ऐसे जदीद शहरी माहौल पर मबनी है जहां नक्लो हमल, रिहाइश और बुनियादी सहूलियात को नए अंदाज में तरतीब देने की कोशिश की जा रही है। इक्तिसादी मंसूबों के साथ साथ सऊदी अरब में मुख्तलिफ समाजी और सकाफती शोबों में भी तब्दीलियां देखने में आ रही हैं, जिन पर आलमी मीडिया और माहिरीन की तवज्जो मरकूज रहती है। यही वजह है कि आज सऊदी अरब न सिर्फ अपनी तारीखी और मजहबी अहमियत बल्कि अपने मुस्तकबिल के मंसूबों की वजह से भी आलमी सतह पर नुमाया मकाम रखता है। सऊदी अरब की सरकारी करेंसी सऊदी रियाल है, जबकि इसकी मईशत मशरिक़ वुस्ता की मजबूत तरीन मईशतों में शुमार होती है। तेल और पेट्रोकेमिकल सनत अब भी अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन सियाहत, सरमायाकारी और नए तरक्याती मंसूबे भी तेजी से मईशत का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हर साल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लाखों मुसलमान हज और उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं। इस वजह से मजहबी सियाहत न सिर्फ रूहानी अहमियत रखती है बल्कि मुल्की मईशत में भी नुमाया किरदार अदा करती है। सऊदी अरब एक बैनुल अक़वामी अफरादी क़ुव्वत का मरकज भी है, जहां एशिया, अफ्रीका और दुनिया के दीगर खित्तों से ताल्लुक रखने वाले लाखों लोग रहते और काम करते हैं। इनमें पाकिस्तानी कम्युनिटी भी नुमाया हैसियत रखती है, जो कई शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में ताउन और शराकत दारी के रिश्ते रखते हैं, जिसकी वजह से इनके ताल्लुकात को खित्ते में अहमियत हासिल है। अगर सकाफत की बात की जाए तो सऊदी अरब अपनी रिवायात और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। अरबी कहवा, खजूरें, रिवायती लिबास, ऊंट, अरबी घोड़े और मकामी पकवान यहाँ की सकाफती शिनाख्त का हिस्सा हैं। कब्सा और मंदी जैसे खाने दुनिया भर में मकबूल हैं। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब को सिर्फ एक जदीद रियासत या एक तारीखी खित्ते के तौर पर नहीं देखा जाता। यहाँ कदीम रिवायात भी मौजूद हैं और जदीद तरक्की के मंसूबे भी। एक तरफ मुकद्दस मकामात हैं और दूसरी तरफ मुस्तकबिल के शहरों के ख्वाब। ये एक ऐसी सरजमीन है जहाँ तारीख, सकाफत, रूहानियत और तरक्की एक साथ दिखाई देते हैं, और शायद यही इम्तिजाज सऊदी अरब को दुनिया के मुनफरिद तरीन मुमालिक में शामिल करता है। अगर आपको ये दस्तावेजी फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि सऊदी अरब के बारे में आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात दिलचस्प लगती है।